Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. So we will be revising the complete concept of the chapter through MCQs. And topic for this lecture is solid state. Before we start with the questions, make sure you subscribe to this channel so that you can get more and more videos on MCQs which will help in revising the topic thoroughly. Right? So in the chapter of solid state, we have seen the concepts like types of solids, types of unit cells, types of crystal systems, types of packing. Mainly two packings were there in 3 dimension. One was HCP, other was CCP. What type of voids are present in them? And then various structures of crystals like NaCl crystal structure and cesium chloride, zinc sulfide, and fluoride structure, anti-fluoride structure, and crystal structure of diamond. Apart from that, what are the various defects in solids, and what are the various types in which we classify the solids according to their magnetic properties, right? So today in this video, we have to revise all the topics, but this time it is through NCERT exemplar problems. So all NCERT exemplar problems are there. They are taken up in this video. So let's start with them. Question number 1 on the screen. First question is, which of the following favors the existence of a substance in solid state? Substance solid state में रहेगा, उसके लिए क्या favorable condition है? High temperature, low temperature, high thermal energy और weak cohesive forces. So keep in mind, as the temperature increases, at high temperature molecules are more energetic. Molecules are more energetic, so they try to move away from each other because they have more kinetic energy. We know kinetic energy is directly proportional to temperature, right? So हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में रहना चाहिए. सॉलिड स्टेट में बेटा सब्सटेंस रहता है एट लो टेम्परेचर. एट लो टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस बढ़ जाती हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन बढ़ जाती है. एज अ रिजल्ट द सब्सटेंस विल बी existing in the solid state. At low temperature we can say interactions, or exact word is intermolecular interactions. Intermolecular interactions are more. When intermolecular interactions are more, the substance will exist in the solid state. So हमारा आंसर बनता है कि it will exist in the form of solid at low temperature. Low temperature means B option, right? Coming to the next, which of the following is not a characteristic of crystalline solid? Crystalline और amorphous में difference हम जानते हैं, तो उसके basis पे आंसर करना है. क्या crystalline which is not आपको mention करना है, not a property of crystalline. क्या उनके पास डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होता है? हीट ऑफ फ्यूजन मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ सॉलिड. फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग, ये माइंड में रखिए. एंड आइसोट्रॉपिक नेचर, ये गलत है. क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोट्रॉपिक नहीं होते, वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं. देन थर्ड सी ऑप्शन, अ रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द एंटायर क्रिस्टल. यही तो बेटा डेफिनेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कि उसके पास एक रेगुलर रिपीटेड पैटर्न होता है, राइट? एंड इट इज अ ट्रू सॉलिड. दैट इज ट्रू, दैट इज करेक्ट. बिकॉज जो अमॉर्फस सॉलिड है उसको सूडो सॉलिड कहते हैं, इसको ट्रू सॉलिड कहते हैं. इसके पास फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन होती है, फिक्स टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट होगा. जो अमॉर्फस होगा वो एक फिक्स टेम्परेचर पे नहीं, वो तो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होता है. जैसे कि किसी का अगर हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू समझ लो 570 है, तो वो 570 फिक्स वैल्यू ही रिलीज होगी, या आपको देनी पड़ेगी. इट मे बी रिलीज, इट मे बी एब्जॉर्ब्ड, बिकॉज 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए रिलीज नहीं बेटा, रिलीज मैंने गलत बोल दिया, हीट ऑफ फ्यूजन हमें देनी पड़ती है क्योंकि हम चाहते हैं सैंपल मेल्ट हो. सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस. तो आइसोट्रॉपिक नेचर जो है ये गलत है, यहाँ एन आइसोट्रॉपिक आएगा. एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी
or even dielectric constant or refractive index, etc. These properties, if they are measured, they will give different results, if measured through different directions. They give different results if measured through different directions. क्योंकि जो हमारा ये है सॉलिड क्रिस्टलाइन वाला, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें अरेंजमेंट अलग अलग है, लेफ्ट पे कोई और एटम है, राइट पे कोई और एटम है, और कौन सा एटम है वो भी फिक्स्ड है, तो फिर प्रॉपर्टी का रिजल्ट भी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आता है. तो ये जो होते हैं ना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, ना कि आइसोट्रॉपिक. आपको बोला था विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो हमारा आंसर बनता है बी ऑप्शन. दे आर नॉट आइसोट्रॉपिक. गॉट इट. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड. आपको ऑप्शंस दी हैं ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम एलम एंड सिलिकॉन कार्बाइड. 4 ऑप्शंस आर देयर. तो ग्रेफाइट कौन सा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन में हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी जो कि हैं आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, आफ्टर दैट मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड. तो मेटल तो ये नहीं है. ग्रेफाइट की हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो ग्रेफाइट बेटा एक कोवलेंट सॉलिड है. कोवलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं. ग्रेफाइट कार्बन से बना है, हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं इसमें, तो वो तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ. हमारा आंसर बनेगा क्वार्ट्ज ग्लास. क्वार्ट्ज भी क्रिस्टलाइन है, बट यहाँ ऑप्शन में क्वार्ट्ज नहीं दिया, आपको ऑप्शन में क्वार्ट्ज ग्लास दिया है. राइट. सो क्वार्ट्ज ग्लास जो है इट इज एमॉर्फस. क्वार्ट्ज ग्लास इज एमॉर्फस सॉलिड. ये बेटा बना किससे है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन से. बट सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रैंडम अरेंजमेंट होता है. अगर फिक्स्ड अरेंजमेंट हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा. क्वार्ट्ज अकेला बोल दे अगर ऑप्शन में तो क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन, बट आपको दिया गया है क्वार्ट्ज ग्लास. सो इट हैज रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एज अ रिजल्ट. तो फिर ये हुआ एमॉर्फस सॉलिड. तो क्रोम एलम, मतलब एलम है वो तो उसमें फिक्स्ड अरेंजमेंट है. क्रोम एलम एल्यूमिनियम सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट से बना है. सिलिकॉन कार्बाइड इज अगेन ए कोवलेंट सॉलिड. सिलिकॉन और कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है. एंड कोवलेंट सॉलिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड. तो ये सारे जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं, आयोनिक सॉलिड होते हैं, वो क्रिस्टलाइन के अंडर आते हैं. हमारे पास एमॉर्फस के लिए आंसर बना बी ऑप्शन. इट इज एन एमॉर्फस सॉलिड. Coming to the next one. Next question is, iodine molecules are held in crystal lattice by. जो हमारा आयोडीन का क्रिस्टल होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ आयोडीन, क्या उसमें लंडन फोर्सेस होती हैं या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और कोवलेंट बॉन्ड्स और कोलम्बिक फोर्सेस? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं. देखो I2 ये है ना आयोडीन, ठीक है, 2 बारी मैंने I2 लिख दिया है. अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, ऐसी कौन सी इंटरेक्शन है जो 2 आयोडीन मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड कर रहा है? उसके लिए आंसर आएगा लंडन फोर्सेस, बिकॉज लंडन फोर्सेस आर नथिंग बट दे आर वंडरवॉल फोर्सेस. तो ये जो है I2 बेटा, इट इज एक्चुअली ए मॉलिक्यूलर सॉलिड. एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ पकड़ने वाली कौन सी फोर्स है? उसका आंसर है वंडरवॉल फोर्सेस. वंडरवॉल फोर्सेस को ही लंडन फोर्सेस बोला जाता है. अनदर नेम फॉर वंडरवॉल फोर्सेस इज लंडन फोर्सेस. और मेन बात कैसे देखना है कि डाइपोल डाइपोल भी तो ऑप्शन में लिखा है, तो कैसे देखोगे डाइपोल डाइपोल है या लंडन फोर्सेस है? तो हमारा आंसर है कि जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डाइपोल डाइपोल नहीं हो सकता. डाइपोल के लिए डाइपोल चाहिए, डाइपोल इंटरेक्शन के लिए डाइपोल चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड होना चाहिए. जैसे कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया है, लेट्स से HCl दिया है, HCl और HCl के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. उसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक एंड मॉलिक्यूल का पॉजिटिव है और एक एंड नेगेटिव है.
क्लोरीन इज नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। आयोडीन में तो ऐसा नहीं है, आयोडीन तो नॉन पोलर है, आप किसी को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कह सकते। तो जो नॉन पोलर होते हैं उनमें वंडरवॉल इंटरेक्शंस क्रिएट कैसे होती हैं वो आप देखो। जो वंडरवॉल इंटरेक्शंस हैं उनको बेटा इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल बोला जाता है। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल मतलब एक सेकंड के लिए डायपोल इंड्यूस करा जाता है। कैसे होता है वो एक सेकंड के लिए भी, कहां से आगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, इट विल कम ड्यू टू अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायपोल क्रिएट होगा फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से देखो ये I2 था, I2 में बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से बना है और दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली मूव करते हैं। बट एक सेकंड के लिए अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो, लेट्स से फॉर ए मोमेंट, इंस्टेंटेनियस का मतलब जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, तो इंड्यूस कैसे होगा फिर फ्यू सेकेंड्स के लिए, जब ये मूवमेंट अनसिमेट्रिकल बनेगी इलेक्ट्रॉन की, तो पार्शियल सा एक नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा। लेट्स से कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ को आ गए, एज अ रिजल्ट फिर वो क्या करेगा, नेबरहुड का जो I2 था, नेबरहुड के I2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसका बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये जो पार्शियल नेगेटिव आया ये उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा, तो वहां पे फिर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया किसने, डेल्टा नेगेटिव ने। डेल्टा नेगेटिव ने नेबरिंग मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को एक सेकंड के लिए जब रिपेल किया तो वहां डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो गया। तो ये डायपोल इंड्यूस होता है, बट ये एक सेकंड में इंड्यूस हुआ, अगले ही मिनट में जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिकल हो जाती है, फिर ये डिसअपियर हो जाता है। इस वजह से ये जो वंडरवॉल इंटरेक्शंस होती हैं ये बहुत वीक इंटरेक्शंस होती हैं, राइट। सो dipole is induced temporarily। माइंड में ये रखिए कि जब जब मोलर मास ज्यादा होगा, जब जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो फिर ये वंडरवॉल इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। बहुत वीक इंटरेक्शन है, बट बिग साइज में, बिग मॉलिकुलर मास में ये जो वीक इंटरेक्शन है ये एक बड़ी इंटरेक्शन की तरह प्रूव होती है। आपके सामने आयोडीन एक सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है। कैसे, क्योंकि उसमें लंडन फोर्सेस हैं। आयोडीन का बहुत बड़ा मास है, बिग मॉलिकुलर साइज, राइट। सो इट इज ए मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड आइस भी है। आइस के अंदर कैसी इंटरेक्शन है, पहले तो हम यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं कि जो आयोडीन है इट इज ए मॉलिकुलर सॉलिड। इफ आई कम टू द एग्जाम्पल ऑफ आइस, आइस इज ऑल्सो अ मॉलिकुलर सॉलिड, बट ये जो मॉलिकुलर सॉलिड है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ना कि डायपोल डायपोल, ना कि लंडन फोर्सेस। तो मॉलिकुलर सॉलिड कई तरह के होते हैं। I2 भी एक मॉलिकुलर सॉलिड है जिसमें लंडन फोर्सेस हैं, और आइस भी एक मॉलिकुलर सॉलिड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो समझना बहुत जरूरी है। वो इस चैप्टर की मेन बात है। हाउ टू मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय विच टाइप ऑफ बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एटसेट्रा। तो आंसर बनता है A option. So before I go to the next question, the point to be learnt is non-polar molecule के अंदर डायपोल डायपोल नहीं होता, नॉन पोलर में हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं होता, नॉन पोलर में सिर्फ एक इंटरेक्शन होती है जो वंडरवॉल इंटरेक्शन होती है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड मतलब कोवलेंट सॉलिड को बेटा नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। आपको क्या क्या ऑप्शंस गिवन है, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, आयोडीन और डायमंड और वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो देखो नेटवर्क सॉलिड पहले याद रखो कि कोवलेंट सॉलिड्स आर कॉल्ड एज नेटवर्क सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स आर नेटवर्क सॉलिड्स, ये पहले माइंड में याद होना चाहिए। तो डायमंड एक कोवलेंट सॉलिड है, गॉट इट।
डायमंड कार्बन एटम से बना है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। सल्फर डाइऑक्साइड तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयोडीन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, वाटर इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन कोवलेंट सॉलिड, constituent particle in covalent solid is एटम। एक एटम दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है तो उसको कोवलेंट सॉलिड कहते हैं। बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कोवलेंट सॉलिड्स का। डायमंड इज द कॉमन एग्जांपल फॉर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे फॉर्म 3 dimensional नेटवर्क ऑफ एटम्स। और कोवलेंट बॉन्ड है ना, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। अगर वाटर की बात करोगे, आइस की बात करोगे, आइस में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है तो आइस जल्दी टूट जाती है। बट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डायमंड को। डायमंड इज ए कोवलेंट सॉलिड, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड भी खुद कोवलेंट बॉन्ड है। तो एक स्ट्रांग बॉन्ड से दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स जुड़ जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर की जगह यहाँ इंटर एटॉमिक बोलना चाहिए क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होता है। तो because of very strong covalent bond they have high tensile strength, high melting point and hard 3 dimensional structure. As a result हमारा आंसर बनता है C option for network solid, right? Coming to the next, which of the following solids is not an electrical conductor? आपको दिया है मैग्नीशियम मेटल, एक तो नॉट ढूंढना है। यू आर गिवन मैग्नीशियम सॉलिड, मैग्नीशियम मेटल, टाइटेनियम ऑक्साइड, आयोडीन सॉलिड एंड वाटर सॉलिड। वाटर प्योर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, वो हमें याद रखना है। वाटर इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? एंड आयोडीन सॉलिड भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। गुड कंडक्टर्स होते हैं या तो मेटल्स या फिर आयोनिक सॉलिड्स। वी कैन मेंशन मेटल्स आर good conductors. Metals are very good conductors of electricity. मेटल के अंदर मेटेलिक कंडक्शन होता है एंड टाइटेनियम ऑक्साइड इज गिवन, आयोडीन इज गिवन, वाटर इन द सॉलिड फॉर्म इज गिवन। तो विच इज नॉट ए गुड कंडक्टर में आंसर बनेगा सी ऑप्शन, बिकॉज आयोडीन एंड आइस, water solid means ice and iodine solid is a molecular solid. Even ice is a molecular solid. Both of them are molecular solids. So they are not good conductors. Good conductors में या तो ionic solid होता है या फिर metals होती हैं। तो हमारे को ढूंढना था which is not a good conductor of electricity. As a result आंसर बनता है C and D, iodine and water. गॉट इट? सो दो चैप्टर का बिगिनिंग पार्ट है जिसमें सॉलिड के टाइप्स, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, फिर क्रिस्टलाइन के फर्दर टाइप्स जिसके अंदर आता है आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड देन मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के थ्रू आप देख रहे हो। और ये जो 4 तरह के सॉलिड्स बताए हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कौन सी है, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये एक टेबल फॉर्म में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो वो टेबल ठीक से लर्न होना चाहिए, तभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो। क्लियर? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का रीजन क्या है? क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और कैटायंस और एनायंस? दीज आर दी 4 ऑप्शंस। पहली बात, ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है, ये तो पता ही है ना। ग्रेफाइट इज दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैविंग हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। तो कार्बन के ऊपर बेटा कभी भी लोन पेयर नहीं होता, तो ए ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट देयर ऑन कार्बन। फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द रीजन। इन ग्रेफाइट फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड carbon is present in graphite and it has
each carbon attached to 3 other carbons. Each carbon is attached to 3 other carbon atoms. So each carbon will make 3 bonds and 4th electron is free. 4th इलेक्ट्रॉन जो फ्री है वो मोबाइल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा. एज अ रिजल्ट तो ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है. डायमंड 4 बॉन्ड बनाता है. डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है. sp3 मतलब 4 बॉन्ड बन गए. 1 कार्बन इन डायमंड इज अटैच टू 4 अदर कार्बन्स. उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर. राइट, we can mention after the formation of 3 bonds, 4th electron is free to move around and movement of electron की वजह से ही तो करंट कंडक्ट होता है. सो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन शो करेगा ये ग्रेफाइट. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन का क्या मीनिंग है? कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. गॉट इट? So free valence electron is the reason for the good conductor of electricity by graphite. Coming to the next question now, which is not true about hexagonal close packing? You have to comment on HCP packing, hexagonal close packing. First option is coordination number is 12 and it has 74% packing efficiency. Both are correct. In HCP arrangement, coordination number is 12, right? Each atom is attached to 6 other atoms in its own layer and it is attached to 3 atoms in the layer above and 3 atoms in the layer below. Coordination number 12 कैसे आता है? Each atom is attached to 6 other atoms. Each atom is attached to 6 other atoms in its own layer. अपनी लेयर में ये 6 और एटम्स के साथ अटैच्ड होता है and also attached to 3 atoms in the layer above. Also attached to 3 atoms in the layer above and 3 atoms in the layer below. As a result, हर एटम को अगर आप देखो 12 अलग अलग एटम्स को ये टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर HCP के अंदर 12 होता है. आपको फाइंड आउट करना है विच इज नॉट ट्रू. पैकिंग एफिशिएंसी इज 74%. फॉर HCP एज वेल एज फॉर CCP पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है. बोथ ऑफ देम आर इक्वली एफिशिएंट. राइट. एंड थर्ड ऑप्शन देखो क्या है. थर्ड ऑप्शन में लिखा है tetrahedral voids of second layer are covered by spheres of third layer. That is also correct. जो tetrahedral void को अगर हम कवर कर देते हैं तो थर्ड लेयर का एटम फर्स्ट लेयर के ऊपर आ जाता है. रीड दी सी ऑप्शन केयरफुली अगेन. सी ऑप्शन में क्या लिखा है? tetrahedral voids of second layer are covered by spheres of third layer. Got it? So we can mention here by covering the tetrahedral void atom of थर्ड लेयर. मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर अगर आप एटम रखते हो थर्ड लेयर का, देन एटम ऑफ थर्ड लेयर लाइज एग्जैक्टली अबव, इट लाइज एग्जैक्टली अबव द एटम ऑफ फर्स्ट लेयर. इट लाइज एग्जैक्टली अबव द एटम ऑफ द फर्स्ट लेयर. तो जब थर्ड का एटम फर्स्ट के ऊपर आएगा तो ए बी ए बी ए बी ऐसे करके अरेंजमेंट बनेगा ना. फर्स्ट एंड थर्ड लेयर आर सेम. ये देख लो, फर्स्ट लेयर ए है तो थर्ड लेयर भी ए है. फर्स्ट और थर्ड सेम है, सेकंड और फोर्थ सेम है. तो ए बी अरेंजमेंट का ही तो नाम HCP होता है. CCP में ABC होता है. CCP में फर्स्ट और फोर्थ लेयर जाके सेम होती है. यहाँ बेटा फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम होती है. एज अ रिजल्ट ये तो ठीक बात है, सी ऑप्शन में तो करेक्ट लिखा है. बाय कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर spheres, you will get a sphere of third layer which will be exactly on the first layer, right? Next is
D option. In this arrangement, sphere of fourth layer are exactly aligned with the first layer. This is wrong. इसने बोला फोर्थ लेयर का स्फीयर फर्स्ट लेयर के साथ अलाइन करेगा, ये गलत है. आप देखो HCP तो ABC होता है. ABC में फर्स्ट एंड थर्ड लेयर्स आर सेम. फर्स्ट एंड थर्ड लेयर्स आर सेम. ऐसा थोड़ी ना है कि फर्स्ट एंड फोर्थ सेम है. फर्स्ट एंड फोर्थ तो कब सेम बनेंगी, जब हम लिखेंगे CCP. ABC अरेंजमेंट को CCP कहते हैं. उसमें फर्स्ट और फोर्थ लेयर सेम होती है. हमारा क्वेश्चन CCP पे थोड़ी ना है, हमारा क्वेश्चन तो HCP पे है. क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट HCP अरेंजमेंट. HCP में बेटा फर्स्ट एंड फोर्थ आर नॉट अलाइंड एग्जैक्टली अबव ईच अदर. एज ए रिजल्ट आपका आंसर बनता है D ऑप्शन. आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था, बाकी तीनों करेक्ट हैं, D इज नॉट करेक्ट. क्लियर? सो पैकिंग के ऊपर क्वेश्चन आपने देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स. पैकिंग एफिशिएंसी किस किस का कंपेयर करना है? FCC का, BCC का और सिंपल क्यूबिक का. बेस्ट पैकिंग एफिशिएंसी तीनों में से किसका होता है? FCC. फॉर FCC पैकिंग एफिशिएंसी इज 0.74. पैकिंग फ्रैक्शन 0.74, hence it is 74%. 74% क्या चीज है बेटा? परसेंटेज ऑक्यूपेंसी. कितने परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड रहेगी FCC यूनिट सेल के अंदर? तो वो है 74. अगर हम बात करते हैं BCC की, BCC में 0.68%, मतलब 68% स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है. रिमेनिंग 32% स्पेस वेस्ट जाती है, फ्री स्पेस रहती है. सिंपल क्यूबिक की बात करें अगर, इन सिंपल क्यूबिक ये 0.524 होता है फ्रैक्शन में. 0.524 मतलब 52.4% इज द पैकिंग ऑक्यूपेंसी और पैकिंग एफिशिएंसी. ठीक है, पूरे यूनिट सेल का 74% स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? FCC. और BCC कितना कर रहा है? 68%. और सिंपल क्यूबिक वाला 52.4%. एज ए रिजल्ट आपका आंसर बनता है हाईएस्ट इज इन FCC, मतलब कि B ऑप्शन. उसके बाद आएगा BCC, उसके बाद आएगा सिंपल क्यूबिक. सिंपल क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट यू हैव, नाउ द क्वेश्चंस आर ऑन डिफेक्ट्स. कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स इन. इंटरस्टिशियल साइट किसको कहते हैं? वॉइड को. इंटरस्टिशियल साइट बेटा एम्प्टी स्पेस का नाम होता है, या कह लो वॉइड का ही नाम है. वॉइड के अंदर इंटरस्टिशियल, मतलब वॉइड के अंदर एटम किसके अंदर जाएगा? फ्रैंकल डिफेक्ट में, या शॉर्टकी के अंदर, या वैकेंसी डिफेक्ट, या फिर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. सो क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है. फ्रैंकल डिफेक्ट में जो कैटायन होता है वो फिट हो जाता है इंटरस्टिशियल साइट में. ये देखो इस तरह से अरेंजमेंट होगा. AB एक रेगुलर अरेंजमेंट है. AB इस तरीके से जो अरेंजमेंट है, उसके बाद आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस शो कर सकते हो. कैटायन है A+, एनायन है B नेगेटिव. और हमारे पास सिचुएशन क्या है कि किसी एक जगह से हम किसी एक जगह से हम A+ को हटा रहे हैं. ये A+ को मैंने यहां से हटा दिया और A+ को वॉइड के अंदर एंटर करवा दिया. ठीक है, अपनी स्पेस छोड़ दी उसने, अपनी जगह से तो वो हट गया. इसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं. और याद रखने की बात क्या है कि जब फ्रैंकल डिफेक्ट आएगा तो डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट तो सिंपल एक डिसलोकेशन डिफेक्ट है. एटम मिस नहीं हुआ, एटम अपनी जगह से हटके वॉइड के अंदर चला गया. फ्रैंकल डिफेक्ट अल्कली मेटल सॉल्ट्स शो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्कली मेटल का साइज बड़ा है, तो अल्कली मेटल के कैटायन का साइज भी फिर बड़ा होगा. राइट? तो डी ब्लॉक मेटल्स के अंदर साइज ऑफ कैटायन छोटा होता है. जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं, साइज विल डिक्रीज. तो डी ब्लॉक मेटल्स का साइज एस ब्लॉक मेटल्स से छोटा होता है. एज ए रिजल्ट वी कैन कीप इन माइंड D block metal salts show, or you can say they exhibit Frankel defect. Frankel defect में
कैटायन के अंदर फिट होना पड़ेगा, सॉरी वॉइड के अंदर फिट होना पड़ेगा कैटायन को। एज ए रिजल्ट आपका आंसर बनता है ए ऑप्शन, कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स इन द फ्रैंकल डिफेक्ट। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, which of the following point defects are shown by AGBR solid crystal? AGBR क्रिस्टल शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा, या फ्रैंकल, या मेटल एक्सेस, या फिर मेटल डेफिशिएंसी। 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो ये याद रखने की बात है, AGBR का स्पेशल केस होता है। AGBR दोनों तरह के डिफेक्ट शो कर लेता है, फ्रैंकल भी और शॉर्ट की भी। फ्रैंकल मतलब ए ऑप्शन, सॉरी फ्रैंकल मतलब बी एंड शॉर्ट की मतलब ए। तो आपकी ए ऑप्शन में आ रहा है ए एंड बी, फिर आ रहा है सी एंड डी, ए एंड सी एंड बी एंड डी। आंसर इज ए ऑप्शन। कीप इन माइंड, रेडियस रेशो ऑफ AGBR, radius ratio of AGBR is such that it can show both Frankel as well as Schottky defect. It can show Frankel defect as well as Schottky defect. ठीक है, दोनों डिफेक्ट शो करता है। शॉर्टकी में तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिस हो जाते हैं। फ्रैंकल में तो अभी अभी डिस्कस किया था, फ्रैंकल में कैटायन जो है वॉइड के अंदर चला जाता है। तो दोनों डिफेक्ट्स ये शो कर सकता है। उसका कुछ रेडियस रेशो इस रेंज में फॉल करता है कि दोनों में ये ट्रू एग्जिस्ट करेगा। शॉर्टकी डिफेक्ट भी दिखाएगा और फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाएगा। तो ये याद रखने की बात थी कि AGBR इज द ओनली एग्जाम्पल विच कैन शो बोथ द डिफेक्ट्स। Got it? Let's come to the next question now. Which kind of defect is introduced by doping? Doping मतलब mixing something from outside. तो doping का मीनिंग लिखते हैं पहले। Doping means some impurity added from outside. इफ समथिंग इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड तो बेटा उसको डोपिंग कहते हैं। हम डोपिंग क्यों करते हैं, हम एक्सटर्नल मटेरियल क्यों ऐड करते हैं, उससे क्या फायदा होता है? उससे क्रिस्टल कंडक्शन शो करता है। जैसे कि पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर्स में, प्योर स्टेट में सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट नहीं करते, या कह लो कम कंडक्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर्स ग्रुप 14 से बनते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दे आर यूज्ड टू मेक सेमीकंडक्टर्स। सिलिकॉन्स एंड जर्मेनियम दे आर यूज टू मेक सेमीकंडक्टर्स। तो ये तो जो 4 बॉन्ड बनाएगा, ग्रुप 14 का एलिमेंट है, चाहे सिलिकॉन ले लो चाहे आप जर्मेनियम ले लो। 4 बॉन्ड्स मींस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड इनटू द कोवलेंट बॉन्ड्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है ज्यादा, एज अ रिजल्ट कंडक्शन ज्यादा नहीं होती है। बट रूम टेम्परेचर पे कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड ब्रेक होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन आती है। तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो कंडक्शन शो तो करते हैं, इंसुलेटर में बिल्कुल भी कंडक्शन नहीं होती, उसमें तो कोई एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेमीकंडक्टर में जब जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स, राइट। तो बट ज्यादा कंडक्शन शो नहीं करते हैं। हम चाहते हैं, हम इंक्रीज करना चाहते हैं अगर कंडक्शन को, तो फिर हम क्या करते हैं, डोपिंग कर देते हैं टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। क्यों करते हैं डोपिंग, ये रीजन मैं लिख रही हूं, टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। समथिंग इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड, डोपिंग इज डन और डोपिंग इज कैरिड आउट। उससे क्या होता है, हम ग्रुप 14 के अंदर या तो ग्रुप 15 या ग्रुप 16 का एलिमेंट लाके ऐड कर देंगे। ऐड करा कैसे जाता है, आप अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल को पहले मेल्ट करोगे और इम्प्योरिटी को भी मेल्ट करोगे, दोनों को मिक्स करोगे, दोनों को कूल करेंगे। मिक्स करने के बाद उसके बाद जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा तो सिलिकॉन के बीच बीच में आके आपका इम्प्योरिटी का एलिमेंट भी बैठ जाएगा। एज अ रिजल्ट ये तरीका होता है डोपिंग का, ठीक है। तो अब आपने ग्रुप 15 का एलिमेंट कोई डाल दिया, ग्रुप 15 एलिमेंट इफ डोप्ड, तो ग्रुप 15 में तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया क्योंकि 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में। सो ग्रुप 15 एलिमेंट इफ डोप्ड देन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन will be
अवेलेबल। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिर बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसी तरह अगर ग्रुप 14 को डोप कर दिया, सॉरी ग्रुप 13 को, ग्रुप 14 का तो सेमीकंडक्टर है, ग्रुप 14 एलिमेंट इफ डोप्ड, ग्रुप 13 मैंने बोलना है, ग्रुप 13 से डोपिंग करते हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट इफ डोप्ड, तो उसके पास तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम विल बी लेस। अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है, होल्स आर क्रिएटेड। जब जब होल्स क्रिएट होते हैं तो भी कंडक्शन हो जाती है। होल्स और इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन बस ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो जब आप डोपिंग करोगे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आएगा। इसको डिसलोकेशन नहीं कहते, डिसलोकेशन तो फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है। शॉर्टकी के अंदर तो क्या होता है, कुछ बाहर से नहीं डाला जाता, शॉर्टकी में बस इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आर मिसिंग, कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। तो डी ऑप्शन आंसर है। जब जब डोपिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आएगा। पहले डोपिंग का डेफिनेशन कि हम आउटसाइड से कुछ इंप्योरिटी ऐड करेंगे अपने ही क्रिस्टल के अंदर। हमारा क्रिस्टल जनरली सिलिकॉन जर्मेनियम से बनाए हुए होते हैं सेमीकंडक्टर्स, तो उनका डोपिंग करा क्यों जाता है, पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। डोपिंग इसलिए करते हैं। और याद रखने की बात, डोपिंग या तो हम ग्रुप 15 या ग्रुप 13 से करते हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बट दीज आर मोर फेमस। ग्रुप 15 वाले के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आएगा, और ग्रुप 13 के पास इलेक्ट्रॉन विल बी लेस। जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो होल्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्ट करते हैं, दोनों का फ्लो ऑफ कंडक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, राइट। तो क्वेश्चन में डोपिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। टू गेट ए एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकॉन इट शुड बी डोप्ड विद ए सब्सटेंस विद वैलेंसी। हमने डोपिंग करना है सिलिकॉन का, और हम चाहते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए डोपिंग के बाद। तो किसके साथ आप डोपिंग करोगे, कौन जो भी एलिमेंट आप लोगे उसका वैलेंसी बताना है। विल इट बी 2 और 1 और 3 और 5। अभी अभी डिस्कस भी किया था कि अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए, एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। एन टाइप का ये मीनिंग पता होना चाहिए। एन टाइप का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ग्रुप 15 एलिमेंट दे सकता है। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के नाम हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो जनरली नाइट्रोजन नहीं लेते, नाइट्रोजन तो गैस है ना, तो जनरली आर्सेनिक एंड एंटीमनी लिए जाते हैं फॉर डोपिंग। इनके पास वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर 5 इन नंबर। अगर वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो सिलिकॉन या जर्मेनियम तो 4 बॉन्ड बनाएगा। हमारा क्वेश्चन सिलिकॉन पे, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन। आपने बीच में डाल दिया है आर्सेनिक। आर्सेनिक इज एलिमेंट फ्रॉम 15th ग्रुप। एज अ रिजल्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैज कम। सो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से हमारे पास फिर क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एज ए रिजल्ट वैलेंसी विल कम आउट टू बी, इसका वैलेंसी 5 होगा। हमारा आंसर बनता है डी ऑप्शन। ग्रुप 15 में 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, इसलिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से हमने बोल दिया वैलेंसी इज 5। और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर, अभी तो क्वेश्चन एन टाइप के ऊपर था, अगर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है देन डोपिंग विद ग्रुप 13 एलिमेंट विल बी डन। ग्रुप 13 वाले के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। इन दिस वे आपको याद रखना है पी टाइप कब बनता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स ज़्यादा कंडक्ट नहीं करते, तो हम
डोपिंग कर लेते हैं, डोपिंग से या तो होल क्रिएट हो जाता है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तभी जाके कंडक्शन बढ़ती है। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चार्ज एक्वायर्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर? पी टाइप आपको सेमीकंडक्टर दिया है, उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? चार्ज बेटा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा। ऑप्शंस हैं पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव और डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी इम्प्योरिटी। आंसर है चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप, दोनों न्यूट्रल होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर बोथ आर न्यूट्रल। हम पी टाइप क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा क्वेश्चन पी के ऊपर है। न्यूट्रल होता है सेमीकंडक्टर। आपने क्या किया है, आपने सिलिकॉन के बीच में कोई एक एलिमेंट बाहर से डाल दिया है, और कौन से ग्रुप का डालोगे? ग्रुप 13 का, तभी पी टाइप बनेगा। ग्रुप 13 के मेंबर हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। लेट्स से कि इंडियम के साथ डोपिंग कर दी, ठीक है, इंडियम के साथ हमने डोपिंग कर दी तो पी टाइप बनेगा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन कम है, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 थे, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता था, इंडियम तो 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, वैलेंस शेल में 3 है। एज अ रिजल्ट फिर बेटा प्रोटॉन भी तो कम है ना, उसमें चार्ज नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन कम है तो फिर इंडियम के अंदर प्रोटॉन का नंबर भी तो उतना ही, जितने प्रोटॉन है इंडियम में उतने इलेक्ट्रॉन है। एज अ रिजल्ट इंडियम तो न्यूट्रल है, तो आपने एक न्यूट्रल चीज ही डाली है, इसलिए कोई चार्ज नहीं आएगा, एक होल क्रिएट होगा। दिस होल विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। ये जो होल है, एक बॉन्ड में, फिर दूसरे बॉन्ड में, फिर तीसरे बॉन्ड में, मतलब ऐसे देखो ना, ये नेबरहुड का बॉन्ड टूट जाएगा। लेट्स से ये जो जिस पे मैंने टिक लगाया, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना था, अगर ये टूट जाए तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करके वहां आ जाएगा जहां पे होल है। इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो ये जहां एरो डाउनवर्ड आ रहा है वहां पे बॉन्ड बन जाएगा, और जिस पे मैंने टिक लगाया वो बॉन्ड टूट जाएगा, होल वहां पहुंच जाएगा। तो होल की मूवमेंट से कंडक्शन होती है, बट चार्ज नहीं आता। न्यूट्रल एटम हमने डाला है, जो भी एटम हमने डाला उसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, एज ए रिजल्ट वो न्यूट्रल ही रहेगा। डोपिंग आप चाहे 13th ग्रुप से करो, डोपिंग चाहे 15th ग्रुप से करो, चार्जेस नहीं आते हैं। डोंट थिंक कि पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट? सो इट इज न्यूट्रल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सिंपल था बट इंपॉर्टेंट था। जनरली हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन कम है तो शायद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने एलिमेंट ही बाहर से लिया, बाहर से अकेला इलेक्ट्रॉन का एक्सेस या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं हो रही, एलिमेंट पूरा ही बदल दिया है। सिलिकॉन हटा के इंडियम आ रहा है, जितने प्रोटॉन सिलिकॉन में है उतने इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में है, इंडियम में जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रल है ये। गॉट इट? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर अब 15th है। 15th क्वेश्चन इज, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15। A ferromagnetic substance becomes permanent magnet when it is placed in magnetic field because। अब क्वेश्चन है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। ऐसा क्यों होता है? क्या ए ऑप्शन में लिखा है ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी में लिखा है ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है या इन द डायरेक्शन में जाएगा, या डोमेन्स गेट ओरिएंटेड रैंडमली और डोमेन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास सब्सटेंस क्या दिया था, फेरोमैग्नेटिक। अब हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो देखो क्या डिटेल बनती है, फिर आप ऑप्शंस पे वापस आना बेटा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो क्या रहेगा, आप ऐसे समझो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो मेटल एटम्स होते हैं, मेटल एटम्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक substance are grouped together, they are grouped together into domains। ठीक है,
डोमेन के अंदर वो सब एटम, जैसे कि आयरन की बात करें तो आयरन के एटम्स इकट्ठे हो जाएंगे और मूवमेंट स्मॉल स्मॉल रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको डोमेन बोलते हैं. स्मॉल रीजन इज कॉल्ड एज डोमेन. या यहां लिखना था मुझे स्मॉल रीजन. अब दोबारा से पढ़ते हैं. मेटल एटम्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन. उस स्मॉल रीजन को हम क्या बोलते हैं? डोमेन. तो ये जो डोमेन है, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सारे डोमेन्स एक डायरेक्शन में पॉइंट करने लगते हैं. आप जानते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है. मैग्नेटिक फील्ड होता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगी. मैग्नेट की तरह एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स चार्ज एंड ड्यू टू इट्स मोशन. तो सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करने लगेंगे. ये छोटे छोटे जो रीजन हैं, मैंने छोटे छोटे रीजन में बना दिया, इनको डोमेन्स कहते हैं. ये सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉइंट करने लगती हैं. तो हमारा आंसर क्या है कि ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये परमानेंट मैग्नेट क्यों बन जाता है? क्योंकि ऑल द डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. राइट. तो आपका आंसर बनेगा ए ऑप्शन, नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ये पॉइंट करेंगे फिर तो ये कैंसल आउट ही हो जाएंगी मैग्नेटिक मूवमेंट्स. तो डोमेन्स स्मॉल रीजन को बोलते हैं. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो स्मॉल रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज डोमेन. राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है. इन ए कंपाउंड नाइट्रोजन एटम्स मेक क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट. सीसीपी अरेंजमेंट क्वेश्चन ने बोला. नाइट्रोजन एटम्स का उनका सिंबल भी एन दिया है एंड मेटल एटम एम. कोई मेटल एटम है उसका सिंबल है एम. वो कहां पे है? टेट्राहेड्रल वॉइड में और 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड. फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एम एंड एन. इस तरह का क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला प्रिडिक्ट करना होता है वो तो मेन क्वेश्चंस हैं चैप्टर के. सो you are given nitrogen atoms in CCP arrangement. CCP arrangement का मतलब हो गया 4 atoms, या आप N भी लिख सकते हो. हम 4 इसलिए लिख देते हैं क्योंकि बेटा एक यूनिट सेल में CCP के अंदर 4 एटम आते हैं, इसलिए हम 4 लिख देते हैं. कोई X भी ले सकता है, कोई N भी ले सकता है. उसके बाद M कहाँ पे है? M क्वेश्चन ने बोला दे आर प्रेजेंट इन 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स. अब क्या हमें याद है कि n एटम्स के पीछे टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होते हैं. टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा डबल होते हैं. तो हम 4 का डबल कर देंगे. 4 का डबल मतलब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, पर 8 के 8 को कवर अप नहीं करना है. क्वेश्चन ने बोला 1/3 इज ऑक्यूपाइड. 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड. तो ये बन गया 8/3. अब फॉर्मूला प्रेडिक्शन के लिए हम रेशो लेंगे. m:n का रेशो ले लो. m बेटा 8/3 और वो 4. एज अ रिजल्ट ये कितना बनता है? 8:12. 8:12 मतलब 2:3. तो फॉर्मूला अगर चाहिए M2N3, ये जो आपका कंपाउंड है उसका फॉर्मूला बनेगा M2N3. एज अ रिजल्ट answer is B option. This question is a simple question but it has been taken from NCERT exemplar questions. मेटल और नाइट्रोजन का कंपाउंड था. नाइट्रोजन CCP के अंदर था और मेटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में थी, बट सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई नहीं हो रहे थे. 1/3 ऑक्यूपाई हो रहे थे. इस बात का ध्यान रखना होता है. सो टेक द रेशो इन होल नंबर. 2:3 आ रहा है. तो आपका आंसर बन रहा है फॉर क्वेश्चन नंबर 16 बी ऑप्शन, M2N3. राइट. Coming to the next, a sample of ferrous oxide has actual formula Fe0.930 and find out the fraction of metal ions present as Fe+2. Fe+2 के अंदर कितने प्रेजेंट हैं? आपको क्या फॉर्मूला दिया है? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का क्वेश्चन है ना ये. नॉन स्टोकियोमेट्रिक में मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 नहीं होता. आप देख रहे हो 0.93:1 है. 0.93:1 मतलब अगर 100 ऑक्सीजन के एटम हैं तो आयरन के 100 नहीं है, वो 93 है. सिर्फ 7 जगह पे आयरन मिसिंग है. तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का क्वेश्चन है. 1 सेकेंड, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द डिफेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट.
इन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आप क्या बताओगे कि Fe+2 को Fe+3 रिप्लेस करता है। कैसे रिप्लेस करेगा? चार्ज तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, न्यूट्रल रखना है क्रिस्टल को। सो 3 फेरस विल हैव सेम चार्ज एज प्रेजेंट ऑन 2 फेरिक। 3 into 2 is 6 and here 2 into 3 is 6, राइट? तो बेटा हम क्या तरीका करते हैं फॉलो, हम चार्ज को इक्वेट करेंगे। लेट Fe+2 is as present as x, तो रिमेनिंग हो गया Fe+3, वो बन जाएगा 0.93 माइनस एक्स। 0.93 के अंदर दोनों है ना, +2 भी +3 भी, और हमें ढूंढना है +2 कितना है। क्वेश्चन ने यही बोला, फाइंड आउट फॉर Fe+2। ठीक है, तो इक्वेट द चार्ज, इक्वेटिंग चार्ज ऑन बोथ साइड्स। तो आप क्या करते हो, 2x प्लस 3 ऑफ 0.93 माइनस एक्स, फिर ऑक्सीजन का चार्ज, नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। ये चार्ज है किसका? Fe+2 का। ये चार्ज है Fe+3 का। ये चार्ज है ऑक्साइड का, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो नेट चार्ज हम इक्वल टू 0 कर देंगे क्योंकि नेट तो न्यूट्रल है। एज अ रिजल्ट अब x को कैलकुलेट करना है। ये बनता है 2x प्लस, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, यू विल गेट 2.79 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हम x कैलकुलेट करेंगे, ये 0.79 आएगा। क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन ने बोला था व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मेटल एज Fe+2, मतलब 0.79 आया ना, तो अब फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। टोटल था 0.93, तो फ्रैक्शन ऑफ Fe+2 विल बी 0.79 अपॉन 0.93। परसेंटेज में आंसर देना है या डेसिमल में देना है? आंसर डेसिमल में देना है, परसेंटेज नहीं लिखा क्वेश्चन ने, तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बस फ्रैक्शन निकालो। तो बेटा डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 0.85, 0.85। सो आप पहुंच जाते हो बी ऑप्शन पे। 0.85 मीन्स बी ऑप्शन। गॉट इट? तो फेरस और फेरिक जो भी कैलकुलेट करना होता है, बेटर है उसको एक्स ले लो, दूसरे को 0.93 माइनस एक्स हो जाएगा। चार्ज इक्वेट करना है, ये सीखना है सबने। इस इक्वेशन को कैसे लिखा वो अगर हम सीख लें तो हम क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे लिखा है द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 18 to 20 दे मे हैव 2 और मोर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, बट यहां एक से ज्यादा करेक्ट आंसर है, या 2 या 3 या 4 भी हो सकते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट मेटल्स। मेटल के बारे में बताना है। वैलेंस बैंड ओवरलैप्स विद कंडक्शन बैंड, सॉलिड्स का चैप्टर है, मेटल एक गुड कंडक्टर है, तो क्या उसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं? दूसरी ऑप्शन में लिखा है गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज निग्लिजिबल। फिर लिखा है गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एंड विच द बैंड मे रिमेन पार्शली फिल्ड। वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड होता है क्या? तो देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या चीजें हैं। वैलेंस बैंड होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको होमो कहते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे मॉलिक्यूलर तुम देखते हो ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखा है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कि जैसे ए और ए मिलते हैं A2 बनता है। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमने देखा है A2 या B2। यहां मेटल बन रही है, मेटल में 2 एटम 3 एटम नहीं मिलते हैं, मेटल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं, तब जाके मेटल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। तो बनेगा ये भी उसी तरह जैसे 2 एटम को जोड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, यहां पे भी वैसे ही होता है। तो सब एटम, सब मेटल एटम्स के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगे तो बैंड बन जाता है। बैंड के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये देखो इस तरह से। जैसे कि मुझे समझ लो सोडियम बनाना है, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3s1 में, तो एक सोडियम का 3s, सेकंड का, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जब लेवल्स जुड़ जाएंगे मेटल एटम्स के, तो ये इट गिव्स राइज टू ए बैंड।
जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, यहां तो इन्फिनिट नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ रहे हैं, तो उसको फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं कहते, उसको बैंड कह देते हैं। गॉट इट? तो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर ऊपर के एम्प्टी बैंड्स होते हैं। अगर हम सोडियम का ही एग्जाम्पल लें तो बेटा 3s के बाद आता है 3p, फिर आता है 4s, ये सब एम्प्टी पड़े हैं। ये क्या चीज है? ये एम्प्टी लेवल्स हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। तो ये जो एम्प्टी वाले हैं उनका भी बैंड बनेगा। तो इस तरीके से वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंडक्शन बैंड में तो खाली लेवल्स हैं। ठीक है, तो मेटल के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। ये वैलेंस बैंड बना रखा है ब्लैक कलर से, और रेड कलर से हमने बनाया है कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। कंडक्शन बैंड के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो है ल्यूमो। ल्यूमो का मीनिंग, जैसे होमो का मीनिंग सीखा था, वैसे ल्यूमो का लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको बता दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जब डायटॉमिक ट्रायटॉमिक बनना है। यहां तो मेटल बननी है, तो यहां बैंड कहते हैं, बीच बीच में होमो ल्यूमो वाले वर्ड्स भी यूज कर लिए जाते हैं। तो 3 सोडियम की अगर बात करो तो जो 3s, सारे सोडियम एटम के जब 3s जुड़ेंगे तो वैलेंस बैंड बनेगा। तो कंडक्शन बैंड सोडियम का कब बनेगा? जब 3p जुड़ेंगे। एक सोडियम नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोडियम के 3p लेवल्स जब जुड़ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड भी हो सकता है वैलेंस बैंड, और पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है। जैसे सोडियम की बात है तो 3s1 है, 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट सोडियम में 3s1 है। तो अगर 3s2 होता तो मैग्नीशियम होता। तो कैन आई से वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है और वैलेंस बैंड फुली फिल्ड भी हो सकता है। अब हम अपनी ऑप्शंस को रीड करते हैं। हमारी ऑप्शंस ने लिखा है वैलेंस बैंड ओवरलैप्स विद कंडक्शन बैंड, ये बिल्कुल ठीक है। मेटल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का या तो गैप बहुत ही कम होता है या गैप होता ही नहीं, रादर ओवरलैप कर रहे होते हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना। आप मेटल के आयरन की रॉड लो, एक कॉर्नर से हीट करो तो वो दूसरे कॉर्नर तक हमें हीट फील होती है, क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। कहां से कहां जंप करता है? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। आगे लिखा है गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज निग्लिजिबल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। देन इट इज रिटन गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, ये गलत है। एक्सरे की हेल्प से गैप को डिटर्मिन किया जा सकता है। वैलेंस बैंड में रिमेन पार्शली फिल्ड, दैट इज ट्रू। वैलेंस बैंड फुली फिल्ड भी होता है, पार्शली फिल्ड भी होता है। इजियर एग्जाम्पल है सोडियम मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम मेटल की बात करेंगे तो उसका वैलेंस बैंड फुली फिल्ड होगा, अगर सोडियम की बात करेंगे वैलेंस बैंड विल बी पार्शली फिल्ड। तो अब हमारा आंसर बनता है ABD। 3 statements are true, 1 is wrong. Got it? Let's come to the next question, question number 19. An excess of potassium ions makes KCl. So देखो बेटा, an excess of potassium ions make KCl crystals appear violet or lilac in color since, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो KCl के अंदर अगर पोटेशियम हो तो वॉयलेट कलर क्यों आता है? KCl के क्रिस्टल को अगर पोटेशियम के वेपर्स में हीट कर दिया जाए तो कलर आ जाता है, और कौन सा कलर? ये वॉयलेट कलर, आपको क्वेश्चन ने बता दिया। इसी तरह सोडियम क्लोराइड में अगर सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करें तो येलो कलर आता है। ऑप्शंस हैं व्हाई द कलर इज कमिंग, सम ऑफ द anion sites are occupied by unpaired electrons, or some of the anionic sites are occupied by pair of electrons, or there are vacancies, or F centers are created। आंसर तो बिल्कुल ठीक है, F centers का केस है ये। F center क्या होता है बेटा? आपके पास KCl है, KCl ऐसे करके रेगुलर क्रिस्टल के अंदर अगर पोटेशियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट कर दिया जाए, ठीक है, तो सरफेस पे हम पोटेशियम खुद लेके उसको हीट कर देते हैं, तो क्या होता है? पोटेशियम को हीट करते ही वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है।
सरफेस पे K प्लस और इलेक्ट्रॉन बन गए, तो कोई एक क्लोराइड अपनी जगह छोड़ के, अपनी लेटिस साइड छोड़ के K प्लस के पीछे भाग जाता है, वहां जाके K प्लस और Cl नेगेटिव जुड़ जाते हैं। तो यहां से मुझे अब क्लोराइड हटाना पड़ेगा, ये इरेज कर रही हूं मैं, यहां क्लोराइड अब नहीं है यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है, इलेक्ट्रॉन आता है तो क्रिस्टल न्यूट्रल हो जाता है। तो कैन आई से इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इनटू द एनायोनिक साइट, एनायन क्लोराइड था, एनायन वाली जगह पे आके इलेक्ट्रॉन बैठ गया, एज ए रिजल्ट एफ सेंटर क्रिएट हो गया। एफ सेंटर क्यों बोलते हैं, एफ नाम कहां से पड़ा, एफ स्टैंड्स फॉर फारबे। ग्रीक लैंग्वेज में फारबे का मीनिंग बेटा कलर होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक लेटिस साइट से दूसरी लेटिस साइट में मूव करेगा तो उस वजह से कंडक्शन आएगी, सो क्रिस्टल को कलर मिलेगा, कंडक्शन मिलेगी। तो इसके लिए हमने ऑप्शंस दोबारा देखनी है। आंसर है, एक तो एफ सेंटर्स आर क्रिएटेड जिस वजह से क्रिस्टल में कलर मिल रहा है, दूसरी बात सम ऑफ द एनायोनिक साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपके सामने डायग्राम है, एनायन अपनी जगह छोड़ के सरफेस पे चला जाता है तो वहां उसको न्यूट्रल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन आता है। तुम्हारा आंसर बनता है ए एंड डी ऑप्शंस। गॉट इट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एफ सेंटर्स के ऊपर। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इन NaCl। NaCl क्रिस्टल ऑक्टाहीड्रल अरेंजमेंट होता है NaCl का। NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर का नाम ही ऑक्टाहीड्रल अरेंजमेंट है, ऑक्टाहीड्रल अरेंजमेंट इसका नाम है। सो बेटा ऑक्टाहीड्रल अरेंजमेंट मतलब FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल में एक यूनिट सेल के अंदर 4 एटम आते हैं, आपने देखा भी था, 4 सोडियम 4 क्लोराइड फिट होते हैं। एज ए रिजल्ट टेट्राहीड्रल वॉइड्स तो फिर डबल होंगे ना, दे विल बी 2 टाइम्स ऑफ 4, 8 टेट्राहीड्रल वॉइड्स हैं। हेंस आंसर बनेगा बी ऑप्शन विच इज 8। सी में देखो क्या लिखा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑक्टाहीड्रल वॉइड में सोडियम है, टोटल ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स में 4 एटम एडजस्ट होते हैं, पर टेट्राहीड्रल वॉइड का नंबर तो उससे डबल होता है। ये अलग बात है कि NaCl स्ट्रक्चर में ऑल द टेट्राहीड्रल वॉइड्स आर एम्प्टी, वहां ना तो सोडियम है ना क्लोराइड है। सोडियम कहां पे है, ऑक्टाहीड्रल वॉइड में, बट टेट्राहीड्रल वॉइड्स प्रेजेंट तो होंगे ना। क्वेश्चन की ये इंपॉर्टेंस है कि स्टूडेंट समझते हैं शायद NaCl में टेट्राहीड्रल वॉइड है ही नहीं। वॉइड तो बनेंगे, जब जब CCP होगा वॉइड बनेगा, दोनों तरह के वॉइड बनेंगे, टेट्राहीड्रल खाली रहेंगे, ऑक्टाहीड्रल में Na+ रहेगा। गॉट इट। सो आपका आंसर था इट इज 8 एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स। दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर। सो hope you are enjoying the benefits of our courses and keep revising till we meet in the next video. Thank you and bye bye.